Life is race. Everybody is running and I am running too. Many things to chase and I am trying to. In between the race, I heard someone. She told me I never bother who won. I stopped for a while and found her giving me a smile. Inquiringly, I asked, "Who are you?" Abruptly, she replied, "I'm a part of you, whom you have lost, but do you ever realize at what cost?" Now I was confused about what to say. Again, I asked her question, "Where do you stay?" Calmly, she said, "I waited for you every day, but you ignored me, changing your way." She continued, and I found it fascinating. Nothing to say, I was listening. I gave it a thought, and what I found, I'm alone and nobody is around. Then I realized that I have already won the prize. People are still running, but I have already won the race. Thousands of things to chase, but I found myself by His grace. Thank you. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. To find your happiness amongst your own people. बहुत अच्छे आपने आपने अच्छी poem सुनाई और it was really a pleasure to listen to you. Listen to you. Both the poems equally great with a message for us all and uplifting poems. We are engaged in useless activities and missing out on the most important things. So these poems are eye openers for all of us. Thank you, ma'am. Great. Thank you, ma'am, for your Thank you, ma'am. feedback. Hi, Nazma ma'am. Hello. Hello, everyone. It's Nadim. Okay. Yeah, it's but Nadim. Okay, nothing. Yeah, I'm representing Welcome. Hope community. So first of all, I would like to cordial congratulations to both communities for this successful journey. Actually, so I'm representing the Hope community. So I have written two poems on the topic hope. The title of my first poem is Annotation of Hope. Annotation of Hope. Here we go. Hope is to be satisfied with what you have. Hope is to achieve everything you wish for. Hope is the courage never to give up, the strength that keeps you going. Hope is to overcome all the challenges in life, to face all the difficulties with a smile. Hope is when you are pushed to your limits, yet believing on your acceptable fate. Hope is saying, "Yes, I deserve every happiness," and finding the flicker of light in the darkness. Thank you. Very good definition of hope. Very nice. Nicely presented. सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पोएम पर? इतनी खूबसूरत होप पे पोएम लिखी है नदीम जी ने. मैं एक्चुअली वेट कर रहा था नीलम प्रभा मैम का. शायद वो कुछ एड अप करना चाह रही है. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, ऑफ कोर्स होप के ऊपर आपने बहुत अच्छी पोएम लिखी है. बिना होप के तो जिंदगी नहीं है. जब तक इच्छाएं हैं तब तक हम जिंदा हैं. जिस दिन इच्छाएं मर जाएंगी सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो बहुत सुंदर पोएम लिखी है आपने. बहुत अच्छा. Thank you so much. So, you can present my second poem now? Okay, sure. Okay, it's Aurora and Effulge of Hope. Here came the daylight, shrouding the deep purple twilight, with the message, "Get up and take a chance to shine bright." Rising sun, casting the shimmering golden beams, it's another chance to flourish the dreams. If night has darkened the beauty of your life, daylight is a flicker of hope through which life can thrive. Release yourself from the everyday annoying inside, just like the daylight releases itself from the captivity of night. Remember, if the night is made to dream,
Daylight is to fulfill that dream. Night, the depressing phase. Daylight, the encouraging phase. Night, the loss of hope. Daylight, a ray of hope. Thank you. Very nice. Very nice. Thank you so much. Contrast between night and day, wonderfully presented. Thank you so much, ma'am. Night is for seeing dreams and the day is for fulfilling them. Very right. Thank you so much, ma'am. Dreams can be realized only by keeping awake, not by sleeping. That's the idea. Good. Very good. Thank you so much, ma'am. It Thank was you so so nice much. performance. Amreen Hello, ma'am. am I audible? Yes, you are. Okay. So it was lovely performance by Bhat Nadim. Let's call upon the next participant, Tajala Qureshi. Tajala, are you here? Yes, ma'am. I'm hearing. Am I audible to you? Yes, you are. Okay. So basically, I'm Tajala Qureshi from Pakistan, and it's been an honor to perform on stage. So I am choosing one of my poems, and the title of that poem is "For You 1,000 Times Over." So basically, I choose that title from the famous novel of Khalid Hosseini, Kite Runner. So this poem reveals a bond that we have seen Amir and Hassan. So we rarely see that bond in our daily life. So I wrote that poem on that particular bond. The amalgamation of two innocent souls, mingling of emotions and twinkling thoughts, one's shoulder, another's head, purest Puritans with the frame stand, one silence and others understand, for you 1,000 times over. The beauty of innocence and grace, memories across the huge gates, unable to forget the peaceful place. One smiles and other trace the sweetness of that face, appealing eyes along diverging rays. A flash of flame submerges the phrase. One's heart and other's beat. Ignition ignite the intentions of feet. Distance drives the emotional sloth, but the divine love burn the bundle of naught for you 1,000 times over. One's breath, another's life, a more fascinating sight, merging melody, mutually arrive. Duality dwells deep in the sinless stars, for you 1,000 times over. Chastity speaks and appeals every sight. Brightness burn the bundle of fights. Fusion of thoughts, memorize the delicious bite. One's breath, other's life, for you 1,000 times over. Thank you.
Yeah, Tazala, you performed as usual very well. And I'm so sorry, Amarpreet. Actually, there was some work was there, and I was holding okay, myself no issue. in the meeting for so long, so I didn't hear her. बट नो डाउट ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी बोला होगा कि आपने जितने लोगों को ऐड किया है सब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स हैं और किसी को भी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, तो काफी टाइम से मैं अपने आप को रोक के रखा हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि लगा कि जरूरी है एकदम जाना, तो आई रियली सॉरी फॉर दिस। इट्स ओके, नो इशू डियर। आप कोई बात नहीं तजाला, your performance as Yes, usual ma'am. is different and different from everybody, I would say, on personal level. And thanks for Thank performing, you so Tazala, much. and hope to meet you very soon and always. Inshallah. Thank you so much. Thanks, dear. अक्षय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं यही बोलूंगा। आई एम सो हैप्पी, मतलब टैलेंटेड लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई है। आप बोलिए तो हम सब जो है इस तरह के लोगों को हमेशा ढूंढते रहते हैं, और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा अमरप्रीत का, जिसने मुझे इतने टैलेंटेड कम्युनिटी के साथ में एडअप किया है। ऑफ कोर्स फाउंडर्स को बहुत स्पेशल थैंक्स है, एंड मैंने द कोर ऑफ माय हार्ट अमरीन मैम एंड नासिमा मैम, आप लोग का एंकरिंग बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे से आप सबको मतलब इनवाइट करते हो, बहुत अच्छे से आप सबको Thank you so जी, much. बुलाते हो, Thanks a lot, sir. undoubtedly. That's beautiful, ma'am. Yeah. I am also greatly impressed. I am greatly impressed. Thank you so much. Ma'am, on the ending note, thanks a lot. आप सबके Guest बिना ये here. पॉसिबल भी नहीं था, मैम सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। And at जी the end, I अमरप्रीत, would like to sing few lines actually. एक पंजाबी में गाना गाना चाहूंगी और शायद इंग्लिश देखती हूँ इफ आई कैन। पंजाबी वाला जो गाना है वो शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक तेरा सहारा। कुछ ही लाइंस याद हैं या जानती हूँ, आई विल ट्राई टू सिंग। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। जे तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। जे तेरी एक रहमत हो जाए, जे तेरी एक रहमत हो जाए, बंदे दा हर कम सवरदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। किवे करा शुकराना दाता, मैं तेरे उपकारा दा। किवे करा शुकराना दाता, मैं तेरे उपकारा दा। औखे वेले साथ निभाई हो, औखे वेले साथ निभाई, रूप बना के यारा दा, रूप बना के यारा दा। सुख वेले सारी दुनिया, सुख वेले ते सारी दुनिया, दुख वेले कोई सादा नहीं पड़दा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। थैंक यू। दिस वाज अ पंजाबी सॉन्ग। बहुत सुंदर, और आपकी आवाज भी बहुत सुंदर। शुक्रिया मैम। हर अंदाज बहुत सुंदर आपका, आनंद आ गया। सॉन्ग सिलेक्शन भी बहुत खूबसूरत आपका। और we have to express our gratitude to God each moment of our life. We have to be grateful. उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। अब मैं नेक्स्ट हमारे पोएस ग्रुप के फाउंडर को मिस्टर आयुष को वेलकम करना चाहूंगी कि वो आए और सबको अपना इंट्रोडक्शन दे, अपना इंट्रोड्यूस दे और कुछ गोल्डन वर्ड्स कहें। आयुष जी, प्लीज वेलकम। Okay, meanwhile he's coming, we will just introduce her what things I have.
So he is a word culture and he is a founder of Pious Poetry. He is software engineer by profession and has experience working in many companies. He is poet by passion. He writes both in English and Hindi languages and has been part of many online communities as a core team member in 2022. He is a proud writer of or author of 3 solo books, merit holder in national level computer science contest in 2010. His best writer award by many publication and online writing communities. So warm welcome to you, Mr. Ayush Khanna. फाइनली हमारे बीच में आयुष जी आ गए हैं। हमारा गला बैठ गया है आपकी आवाज पुकार पुकार के। तो घर पे का पूरा पैकेज पहुंच जाना चाहिए हम दोनों के घर पे, इवन सबके घर पे। मेरे एक्चुअली घर पे ना गेस्ट आ गए थे तो मैं मीटिंग ऑन करके रिकॉर्ड करके निकल गया था। Amarpreet, your song was so beautiful. Excuse me, I want to say something. Yes. प्लीज बोलिए करिश्मा जी। मैम, जैसे आपने कहा मैम ने, नीलम मैम ने, तो उस पर मैंने एक बार 4 लाइनें लिखी थी माँ पर ही। तो कि दिल पर दुखों का बोझ मुंह से आह निकल रही है, दिल पर दुखों का बोझ मुंह से आह निकल रही है, हंसता हुआ चेहरा दिखाकर माँ मुझे छल रही है, और एक बहुत बड़ी खुशी की माँ की दुआएं साथ हैं, एक बहुत बड़ी खुशी की माँ की दुआएं साथ हैं, और एक सबसे बड़ा दुख की माँ की उम्र ढल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हर बच्चे के दिल की बात है, हर बच्चे के दिल और की दर्द को 2 लाइन में इतना खूबसूरत डिफाइन करना माँ के ऊपर। करिश्मा जी करिश्मा ही है आप, सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरे दिल को तो छू गई ये लाइनें आपकी। दुआएं हैं माँ की, सबकी परफॉर्मेंस हो गई है। दिल की सारी फीलिंग्स जल्दी जल्दी हम सबसे शेयर कर लीजिए अब आप। सब परफॉर्मेंस सबकी हो गई है यहाँ पर। ऑलमोस्ट विपिन मैम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। विपिन मैम ने सुना दिया। विपिन मैम ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, आपने सबकी मिस करी है। ये तो आपको कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। हाँ, ये बेनिफिट है आपके पास जभी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहले तो मैं अपनी परफॉर्मेंस कुछ शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज नीलम मैम का इंट्रोडक्शन मैंने ही देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं था नहीं। वही तो हम कह रहे हैं कि हमें बुलाकर आप गायब हो आप। हाँ चलिए कोई नहीं, माफ किया। हाँ जल्दी इंट्रोडक्शन बस इतना बोलूंगा कि हमारा सबसे पहला जो ऑफलाइन इवेंट हुआ था वहां पे मैम ने पोइट्री सुनाई थी, एंड मैम बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने सबसे पहले मैम को आई थिंक टाइमलेस में ही सुना था, वहां से मैंने मैम को अप्रोच किया था जब हमारा ओपन माइक था, एंड मैम बहुत अच्छा लिखते हैं और मेरे दिमाग में हमेशा से था कि यार एज अ गेस्ट बुलाना है मैम को, बट वो कुछ रीजन की वजह से ऑफलाइन के अंदर नहीं थे, तो मैंने कहा ऑनलाइन में तो मैम को जरूर बुलाना है। तो मैम आप पहले बताइए वो कैसा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मतलब हमारे मुझे ऑनलाइन इवेंट मैं नहीं था तो एक्सक्यूज करो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, खास इस लिए कि इतने सारे टैलेंटेड लोग, मल्टी टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे मिली हूँ, सुना है, और कुछ की पोएम्स ने तो मेरे दिल को झंझोड़ा है, छुआ है। जैसे 4 लाइनें अभी इस बेटी ने सुनाई माँ के बारे में, कि ये मतलब एक नेमतों का पिटारा है जो पर थोड़ी देर के लिए है, अब जाने वाला है। तो मतलब हर एक ने इतनी खूबसूरत पोएम सुनाई है। मैं आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि इस महफिल में आकर मैं खुद अमीर हो गई हूँ। बहुत यहाँ से मैंने एक दौलत चुराई कहूँगी, क्योंकि आपको बताऊंगी नहीं कि क्या क्या मैंने यहाँ से उठाया है। तो मैंने कई चीजें नोट भी की हैं और उन पे मैं डेवलप करके पोएम्स लिखूंगी। ऐसे ही पोएम्स लिखी जाती हैं कि, और मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट करूंगी कि आपने इतनी लंबी जर्नी अपनी कंप्लीट की है, और बेस्ट विशेस दूंगी कि आप आगे भी बढ़े। चलिए अचल सर, तब तक आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इवेंट?
वर्ड्स नहीं मिल पाए, आई एम कंप्लीटली स्पीचलेस। इतने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनने मिली है और इतना अच्छा लोगों ने परफॉर्म किया है यहाँ पे, मेरे पास वर्ड्स नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब आज का दिन ऐसा मेरा इतना खूबसूरत गुजरेगा। बहुत टैलेंटेड लोगों से मिलने का मैंने खुश नसीबी हुआ आज, और बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि इसमें जो मेरे से हो सकेगा मैं खुद भी इस कम्युनिटी के लिए करना चाहूंगा। कभी भी ऐसा इस लायक अगर मुझे समझा जाए इस कम्युनिटी की तरफ से, आई विल ग्रेटफुल यू ऑल। डेफिनेटली डेफिनेटली, इनफैक्ट हम भी चाहेंगे कि आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे। उससे क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बंदे का मतलब इंक्रीज होता ही है, दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार इफ दैट पर्सन कैन डू, तो हम थोड़ा तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ है। हमारे और कोलैब पार्टनर हैं विपिन मैम यहाँ पर, उनका पब्लिकेशन भी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, हमारा भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं एक्चुअली। आप लोगों ने मतलब उनकी ई मैगजीन्स वगैरह मैम की मैंने देखा है, एंथोलॉजीज, प्री एंथोलॉजीज, वो भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो मैं चाहूँगा उन्हें भी मतलब सपोर्ट किया जाए। सारी कम्युनिटी देख जैसी है, मतलब आजकल ना यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया हुआ है कम्युनिटीज़ के बीच में कि यार ये मेरी है तो ये मेरे साथ ही रहे। बट आई बिलीव साथ चल के जो चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आज फायर्स पोएट्री है तो सिर्फ फायर्स पोएट्री को ही मैं चलाता हूँ, मुझे होप से लेना देना नहीं है, मुझे विपिन मैम का कुछ नहीं पड़ा हुआ, मैं कहाँ तक जाऊँगा? मैं यहीं बैठा रह जाऊँगा। मैं सबको साथ लेके चलूंगा तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो मैं सबको ये एक सजेशन है मेरा, मैं हर बार ही बोलता हूँ कि साथ लेकर चलो। एक राइटिंग फील्ड है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, स्टैंड अप कॉमेडियंस को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका हुआ है। सिंगर्स के पास बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास क्या है? राइटर्स कहाँ पे? आप लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हो? एक 250-300 देकर आप ओपन माइक में परफॉर्म करते हो। मेरी पोएम इतनी सस्ती तो है नहीं कि मैं खुद उसके लिए पे भी करूँ। और मैं रात रात भर जाके कई बार लिखते हैं हम लोग, सबको पता है। ड्राइव कर रहे होते हैं, आइडिया आता है, गाड़ी रोक के, एक्टिवा रोक के फटाफट वहां पे लिखते हैं कि चलो ये लाइन नहीं छूटनी चाहिए, और उसको 250 रुपए के अंदर खुद देकर। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है उस चीज के। तो अगर हम लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता है, ये तो है नहीं मैंने अभी सोचा है तो आज मैंने एक जगह भी खरीद ली, वो भी हो गया। धीरे धीरे उस चीज को हम लोग करेंगे तो आई थिंक हम भी आगे बढ़ सकते हैं। सिंगर्स के पास भी है, स्टैंड अप के पास भी है, एक्टर्स के पास तो बहुत पहले से है। आप सभी से जानना चाहते हैं, someone is there to think about us also. Right. And we agree that literature is the most neglected right from the ancient times. Yes. आप प्रेमचंद जी को याद कीजिए। सॉरी नेटवर्क इशू से चली गई थी मैं। जी कोई बात नहीं। That is so true, Neelam ma'am. Most of the writers' writings were published posthumously, right? They live a life of oblivion. Nobody knows them. Poverty was always. I think विपिन मैम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आती नहीं, मार्केटिंग स्किल्स होती नहीं बेचारों के पास। बिल्कुल सही है। So they don't know how to sell themselves. बुक पब्लिश exactly. अब मैं अपना एग्जांपल लोगे ना, how will you sell the book? That's the issue. मैं वही आपको बोलता हूँ, आपकी भी एक बुक मैम की निकली है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी 3 बुक निकल चुके हैं अमेज़न पे। आयुष खन्ना देखो वहाँ पे होगा। और उसकी अभी ये बुक कब की आई है? 2021 की। आज तक कितनी बुक सेल हुई है? 15। मार्केटिंग की नहीं पता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना। और मेरी एंथोलॉजीज में है, अगर एंथोलॉजी बिकती भी है, I don't even come to know कि बिकी है वो, क्योंकि मेरी you are not getting anything. You are not getting anything. She will not paying for making an anthology. That's the truth. Bitter truth. Yeah. Bitter truth. मैं तो अपनी बुक ऐसे ही फ्री में ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ताकि कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट। एक्चुअली मेरे सारे नोट्स में मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ताकि कम से कम एटलीस्ट वो पढ़े, राइटअप तो देखे तो सही कि कितना। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। कोई गारंटी। Come again and say yes, you have written nicely. You know, I have heard a comment like that also कि आप लिखते इसलिए हो क्योंकि आपको फेमस होना है। No, we don't write just because we want to be famous. We write because we need people to hear us. We love to write.
एग्जैक्टली। लेकिन फिर जब अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती ना, तो फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस भी होती कि यार ठीक है ना, थोड़ा फील पड़ा हुआ है। But that is not the only motto, right? But there are people who will think just like that. दिल की खुशी के लिए लिखते, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है ना, लोग मतलब अब जैसे कोई So Ayush sir, you have compensated emotionally to us, right? Yeah. Cunning late, sir. He is cunning nicely, very smartly. He has compensated it. So I'm actually we all are writers ना, so we can manipulate the lines and people. शब्दों के जादूगर। शब्दों के जादूगर। नहीं मैं सुनाऊंगा डेफिनेटली। देखो था पहले इंटरेक्शन होता है सबके साथ, तो उसके बाद newcomer in this call. I think this is last time. Has raised the hand. मैम आप काफी टाइम से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं कुछ खास नहीं कहना चाह रही थी, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि जो शुरुआत की है उसे रोको मत, और जो एक बात कही उससे मैं भी एग्री करती हूँ कि मैं ये थोड़ा ज्यादा मेरे भी सुनने में आ रहा है अभी थोड़े समय से। We think about everybody and few people are there, they think about themselves only. Like हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग, हमारे राइटर, और मैंने यहाँ तक सुना है कि मैं नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं दिखाई दे रही, मैं कहाँ हूँ। मेरा बस वही कहना है कि जो शुरू किया है ना, इसे रोकना मत। देखो हमारी तो हो गई उम्र, सीधी बात, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, बाकी चीजें हैं, तो हम थोड़े स्लो पेस से चलेंगे तुम्हारे साथ, बट तुम अपनी स्पीड कम मत करना। whatever you have started ना, don't stop it, and wherever you need any sort of a support, we all are there to support you. And I am always humbly thankful to you forever for my life, that you are the one who always motivated. नीलम मैम, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिखना शुरू किया, मैं सोशल मीडिया से दूर रहने वाला इंसान हूँ, मैं अपनी डायरी और कलम के साथ खुश रहती थी। फिर ये लॉकडाउन वगैरह हुआ, कोविड वगैरह आया, तो थोड़ा इंस्टाग्राम बाकी चीजें लॉकडाउन ने तो सभी की लाइफ चेंज कर दी। Out of the blue, I came in contact with these WhatsApp groups and all, and I was one of the. I really wish I also want to perform. I just want to perform. Most of the groups mushroomed during that period only. Yeah, actually. So out of the blue, I got joined to one group, 2, 3, 4, 5, and I started journey with Payush last year only in October somewhere. Same with me. And he didn't know that I am the female writer. I used to write and he used to give the beautiful comments. So I used to feel appreciated. Oh wow, wonderful. And I still remember one of the romantic poetry I wrote and he evaluated. अपेक्षा जलोटा वाला ग्रुप जो था, अपेक्षा वाला, तो he was like कि आपने बहुत खूबसूरत लिखा है, किसी भी लड़की की रातों की नींद उड़ा दोगे आप। I still have that screenshot in my phone. So that time our group was mostly on the admin mode, ki we cannot reply back. But I still remember Ayush, all the comments, the way he motivated, and my journey with Ayush has been wonderful. Like he being young, very young, he's half of my age, technically speaking, but he's like a mentor to me. And anywhere I feel myself stuck somewhere or I need to have any help, he's always there to help me out. So Ayush, thank you so much for that. And we are on a parallel journey and we will never collide. That is my word to you. Definitely. क्या बात है, क्या बात। हमें तो पता ही नहीं था आयुष जी की इतनी सारी खूबियों के बारे में। नहीं, he's a wonderful man. He never speaks out the things. हाँ, उसका गुस्सा सब लोगों ने देखा है कि he gets angry very fast. The thing is, there is sober side of this man also. मतलब मैं और विकास बहुत बात करते हैं इसके बारे में कि he's a nicest human we have met. इनकी जनरेशन का तो बहुत ही अच्छा लड़का है ये, मतलब कम बच्चे होते हैं जो ठीक है गुस्सा भी बैलेंस कर लेते हैं और बाकी चीजें भी बैलेंस कर लेते हैं। You're a wonderful man and मतलब मेरी let this thing go on. Yeah. तो एक्चुअली कल क्या है, मैं सुनता नहीं होता ऑफलाइन इवेंट की, बट मेरे को लगा कि रिहर्सल कर लेनी चाहिए। तो कल मेरा ऑफलाइन इवेंट है अदल के साथ, तो अदल के साथ ऑफलाइन इवेंट है, वहां पर मैं सोच रहा हूँ ये सुनाने का। आप लोग प्लीज ना, अगर कुछ खराब भी लगे ना तो आई रिक्वेस्ट कि बता दो कि हाँ लाइन, बिकॉज मैं हिंदी में सबको पता मैं कम लिखता हूँ। तो इसका टाइटल मैंने दिया है दिल में सिया के राम नहीं। सुनो फिर पता लगेगा क्या है। मैं पहले डिस्क्लेमर नहीं दूंगा कि कलयुग के, अब आवाज आ रही है मेरी, राइट? जी बिल्कुल आ रही है।
कलयुग के इस युग में किसी का कोई सम्मान नहीं। कलयुग के इस युग में किसी का कोई सम्मान नहीं। रामायण तो है हर घर में, मगर दिल में सिया के राम में। बदनाम हो जाती है घर की लक्ष्मी, बदनाम हो जाती है घर की लक्ष्मी, और रावण खुलेआम करता है संहार। वो राम अब किसी घर में नहीं, जो बचा लाए अपनी नार। औरत का कोई सम्मान नहीं, औरत का कोई सम्मान नहीं, और लक्ष्मी का सब करते ध्यान। काश अमल भी करें कभी, जो देते हैं इतना सब ज्ञान। खुद ही घर की इज्जत को तार तार करते, और खुद ही हो जाते हैं अंतर ध्यान। दुष्कर्म करके बेटा है निकरम, दुष्कर्म करके बेटा है निक्रम, और माता पिता मुंह छुपाते फिरते हैं, जो कभी करते थे उस पर अभिमान। झूठ बोलते छल भी करते, और लूट लाते औरत का सम्मान। झूठ बोलते छल भी करते, और लूट लाते औरत का सम्मान। ना जाने किस मुंह से फिर वो करते हैं भजन राम। कलयुग के इस युग में किसी का कोई सम्मान नहीं। रामायण तो है हर घर में, मगर दिल में सिया के राम नहीं। न कोई पीता विष शंकरता, न कोई पीता विष शंकरता, न कोई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है। न कोई राम है अब यहाँ, जो रावण की कैद से सीता को पवित्र वापस लाता है। न आया कोई द्रौपदी की लाज बचाने, न आया कोई द्रौपदी की लाज बचाने। न किसी ने प्रतिज्ञा उठाई थी, निर्वस्त्र होते उस नारी को देख किसी को लज्जा भी ना आई। कहाँ है वो पुरुष, कहाँ है वो पुरुष, जो मर्द मर्द का नारा लगाते हैं। पुरुष होकर भी नामर्द हैं, जो स्त्री की लाज भी ना रख पाते। दिन किसी और की बाहों में, और रातों पर किसी और का है वास। दिन किसी और की बाहों में, और रातों पर है किसी और का वास। घर में पत्नी का दर्जा किसी और को, और कोई और है उनके दिल के पास। कलयुग के इस युग में किसी का कोई सम्मान नहीं। रामायण तो है हर घर में, मगर दिल में सिया के राम है। वचन की खातिर उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन भी त्याग दिया। वचन की खातिर उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन भी त्याग दिया। पिता पर ना लगे कलंक, इसीलिए सन्यासी की भांति 14 वर्ष का वनवास। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने परलोक सिधारे पिता को दिया वचन भी शिद्दत से निभाया था। और कस्में भी खाते हैं झूठी उनकी कुछ लोग, और कस्में भी खाते हैं झूठी उनके कुछ लोग, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में लाया। प्रतिशोध ज्वाला अब हर मन में इस तरह समाई है, प्रतिशोध की ज्वाला अब हर मन में इस तरह समाई है। भीगी आंखों से ब्रह्मा भी पूछ रहे, ये दुनिया किसने बनाई। तुम युधिष्ठिर बन द्रौपदी को दांव पर कैसे लगाते, तुम युधिष्ठिर बन द्रौपदी को दांव पे कैसे लगाते हो। दुर्योधन तो था ही दोषी, दुर्योधन तो था ही दोषी, फिर तुम किस मुंह से अपने आप को निर्दोष कहलाते हो। कलयुग के इस युग में किसी का कोई सम्मान नहीं। रामायण तो है हर घर में, मगर दिल में सिया के राम नहीं। और अपने राइटअप का मैंने कंक्लूजन, इसका अंत इस तरह किया है कि तुम भीष्म पितामह की भांति अपने वचन पर अटल रहे, तुम भीष्म पितामह की भांति अपने वचन पर अटल रहे। तुम दानवीर कर्ण होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। परशुराम की भांति माता का गला तुमने भी काटा था, अर्जुन होकर तुमने भी पांडवों में द्रौपदी को बांटा था। सम्राट युधिष्ठिर थे, सम्राट युधिष्ठिर थे, फिर भी अपने भाइयों को तुम बेच आए थे। सात वचन तो निभाए नहीं, और बीवी पर ही इल्जाम लगाए थे। राम होकर भी सीता को कैसे तुमने वनवास दिया, खुद जीत कर पांडवों में तुमने कैसे द्रौपदी को बांट दिया। लक्ष्मण होकर शूर्पणखा स्त्री पर तुमने भी तो तलवार चलाई थी। तुम राम थे, फिर भी धोखे से बाली की बलि चढ़ाई थी। कभी मिले मौका तो सोचना क्यों ऐसी परिस्थिति आई थी, कभी मिले मौका तो सोचना क्यों ऐसी परिस्थिति तुम लाए थे। अपने ही हाथों अपनों की जिंदगी तबाह तुम कर आए थे। क्यों उन रिश्तों को चुना तुमने, क्यों उन रिश्तों को चुना तुमने, जिनका आज कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं। उन नातों को जोड़ा तुमने, जिनका आज कोई नाम नहीं। कलयुग के इस युग में किसी का कोई समान नहीं। रामायण तो है हर घर में, मगर दिल में सिया के राम नहीं, मगर दिल में सिया के राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Very good. You have raised some very pertinent questions, very important and vital questions, जो बहुत बार मेरे दिमाग में भी कौंधते हैं कि
सभी ने अन्याय किया, कृष्ण ने भी अन्याय किया, कुंती ने भी अन्याय किया कर्ण के साथ, तो किसने न्याय किया? किसी ने भी नहीं। बहुत बहुत सुंदर आयुषी, आपने जिस तरह से लिखा है ना कलयुग को, जो पूरा रामायण का जो अर्थ पूरे दुनिया को समझना चाहिए, उसको आपने शब्दों में पिरो के बिल्कुल कविता के रूप में लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है। मतलब मैं तो बहुत आपको बढ़िया नहीं क्वेश्चन जानता रेज किए हैं। बहुत बहुत अच्छा। और ये आपको बिल्कुल सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहिए। और सोशल मीडिया चूंकि आज के डेट में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है हम लोग की लाइफ में, जिसको हम लोग गुड और बैड दोनों वेज में ले सकते हैं। दोनों वेज में लेते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, हम लोग इसको गुड वेज में ले, हम लोग इसको गुड गुड तरीके से, जो इससे अच्छा हम लोग निकाल सकते हैं कि आपकी बात को पहले आप शायद कुछ लोगों तक पहुंचा पाते थे एक बार में, अभी आप अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पोएम को पूरा का पूरा एज वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस वर्ड्स भी अगर स्क्रीन पे चलता रहे, कुछ ऐसा करके अगर आप फेसबुक के पेज अपलोड कर दो पब्लिक व्यूज के लिए, मुझे लगता है बहुत लोगों के दिल माने जीवन में चेंज आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि जो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो शायद इस जरिए अपने बात को एक्सप्रेस कर सके। बिल्कुल। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे आउट। मेरे माइंड में भी मतलब हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सही तो राम जी ने भी नहीं किया ना सीता माता के साथ, और देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बाली को तो पीठ पीछे मारा था ना उन्होंने। उसी का बदला जस्टिफिकेशन ये है कि बाली ने अपने ही भाई की पत्नी के को, तो उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि वो गलत वो कहते हैं ना कि कर्म मतलब अपने कर्म का हिसाब करना पड़ता है उसी जन्म में, तो वो उनका हो गया। कृष्ण जी के जन्म में जो कृष्ण जी को बाण लगा वो बाली था। तो कृष्ण जी ने तो बहुत जगह पे ये पांडवों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो वो कौरवों का अगेंस्ट किया ना, कौरवों ने कितना कुछ किया। बात तो वही है, कौरवों को तो हम कहते ही वो है अनैतिक कहते हैं, अनएथिकल कहते हैं, अनप्रिंसिपल्ड कहते हैं, लेकिन इधर पांडवों के लिए कृष्ण जी ने खुद किया, सब कुछ किया। मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि मतलब ठीक है आपने सब कुछ बेच दिया तो बीवी को दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी? जी, वो मतलब ऐसे लोगों का आप साथ दे रहे हो जो अपनी पत्नी, एक पत्नी है 5 की, तो आप उसको दांव पे लगा रहे हो। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसने वरदान मांगा, द्रौपदी ने जो किया, बट 5 पति होना वो ठीक है। आज भी हम गलत नहीं बोलते उस चीज को, क्योंकि actually that was written like that ना, actually it was written like that ना, because द्रौपदी ने वरदान मांगा था कि 5 गुण चाहिए जिनको पता है। अब एक इंसान के अंदर कोई 16 गुण संपन्न तो राम जी भी नहीं थे, उनमें भी 14 ही गुण थे भाई, 16 गुण तो वो भी नहीं थे, तो एक नॉर्मल इंसान कहाँ से? कि उनको जो पांडव थे, they were never denying anything what their mother used to, they were obeying their mother very nicely. That is what I remember from my childhood. जब वो घर पर लेकर आके एग्जैक्टली दैट इज मैं एक बात रखना चाह रहा था, एक बात मैं रखना चाह रहा था। ये जो कुछ कुछ प्रकरण है ना महाभारत से या रामायण से, तो बाली के बारे में, बाली वाली बात से मैं शुरू करता हूँ। बाली के बारे में ये चीज है कि उसके सामने जो भी आता था उसकी आधी शक्ति बाली को आ जाती, तो उसको वरदान मिलता है। तो बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम समझे जाते हैं, हर तरह से मतलब एक तरह से आप बोलो बैलेंस्ड पर्सनालिटी का एग्जाम्पल है, तो फिर उन्होंने बाली को पीछे से क्यों मारा? उसका रीजन यही है कि ये मजबूरी थी उनकी, क्योंकि अगर वो उनके सामने जाते तो आधी शक्ति तो उसके पास चले जाते तो बिल्कुल बाली कभी मर ही नहीं पाता, क्योंकि बाली की अपनी शक्ति और भगवान श्री राम की आधी शक्ति चले जाए तो वो अपने आप ही पावरफुल हो जाएगा। तो ये इस वजह से जो है बाली को पीछे से मारना एक मजबूरी हो गई थी, नहीं तो अन्याय का अंत फिर कभी खत्म ही नहीं होगा ना। जैसे कि नीलम मैम ने बोला कि बाली जी ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, अपनी भाई की पत्नी को ही उठा के वो ले आया था, तो यहाँ पे भगवान श्री राम को मारना उसकी मजबूरी थी। और जहाँ तक भगवान मतलब उसका भी एक रेसिप्रोकेशन हो गया ना वहाँ पे, मतलब एक राम जी को भी तो सजा कृष्ण जी के जन्म में मिली ना, वही चीज मैंने उधर भी बताई कि मतलब वो उन्होंने मारा था, तो वो भी चीज गलत ही थी डेफिनेटली, पीठ पीछे नहीं। बट मैं आपको कुमार विश्वास जी द्वारा जो रामायण के
विभिन्न अंशों को जो उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया है और जिस तरह से उसका मीनिंग बताया है, आई एम श्योर आप इतने अच्छे माने राइटर हो, आप इतना अच्छा पोएम लिखते हो, मुझे नहीं लगता आपने कुमार विश्वास जी को कभी नहीं सुना होगा, लेकिन रामायण वाला जो पार्ट है एक बार आप जरूर देखिए। मेरा भी बहुत सारा जो माने एक तरह से बोलिए जो रामायण को लेके डाउट था या महाभारत को लेके डाउट था, बहुत सारा चीज क्लियर हो गया। कुमार विश्वास जी द्वारा जिस तरह से उन सब चीजों को बताया गया, रखा गया है, वो एस्पेक्ट को भी थोड़ा सा एक बार जरूर देखना चाहिए, एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग बनाने से जरूर देखिए। और आपका जैसा जनरेशन, मैं 2004 से प्लस टू कॉमर्स टीचर हूँ, बहुत जनरेशन पार हो गए, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ के निकल गए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका जैसा जनरेशन है, आप जो जनरेशन अभी चल रहे हो और जिस सोच को आप लेके चल रहे हो, अगर वो सोच समाज में आती रहे तो समाज का विनाश जो है वो नहीं होगा कभी, हमेशा फिर आगे ही बढ़ेगा। लेकिन जिस तरफ अभी समाज जा रहा है ना, वो बहुत चिंतनीय स्थिति है। इट्स वेरी व्हाट आई से बहुत केयरलेस होते जा रहे हैं हम लोग सब, है ना। ये सब चीजों को संभालना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस आवर सोसाइटी वेयर वी आर एक्चुअली रिसाइडिंग, एंड नो वन एल्स विल कम फ्रॉम आउटसाइड और आउटसाइड द कंट्री who can save our country, who can save our society. It is us who can save our society. अगर आप लोगों की इजाजत हो तो should I also say one poem? शायद आप किसी ने सुनी होगी, but I just should I? Okay, thank you so much. मेरी ये पोएम हिंदी में है, इसका नाम है अस्मा। अस्मा मेरी कहानी का तो महज एक किरदार है, पर असल जिंदगी में ना जाने कितने जिंदगियों की यही छिपी दरकार है। अस्मा मोहब्बत को तरसती वो लड़की की कहानी है जिसको मैंने करीब से जानी है। अस्मा हर वक्त खुद से जूझती एक पहेली है, हजारों रिश्तों के बीच खिलती एक मासूम कली है। यूं तो वो बहुत बातें करती है, पर कोई उसकी सुनता कहाँ है, बस तन्हा और अकेली है। दिल भी खूबसूरत है और देह भी उसकी खूबसूरती से भरी है। शायराना अंदाज में कहो तो वो कोई हूर परी है। ऊंचा लैलाट, मोटी मोटी आंखें और जुल्फे गनेरी है, घुंघरों की तरह खनकती उसकी मासूम किलकारी है। अब बात उस वक्त की है जब होती शादी उस बदबख्त की है। मर्जी उसकी जानने का भी रिवाज होता है, पर माँ बाप के आगे हौसलों का कहाँ परवाज होता है। हौसले उसके भी बुलंद थे, पर ऊपर उसके फरमाबरदारी थी। ना हो गई बहन की तरफ से, अब तो उसी की बारी थी। माँ बाप को भी तो पूरी करनी अपनी जिम्मेदारी थी, बस अब निकाह की पढ़ने सबकी तैयारी। अस्मा से बस एक रस्मी तौर से पूछ लिया गया, शोशा शादी का फिर उस पर छोड़ दिया गया। अस्मा के दिल की किसी ने ना जानी, खुद अस्मा भी कहाँ अपने दिल को पहचानी। जल्द ही घर सज गया रंग बिरंगी लालियों से, और सज गई अस्मा लाली काजल बिंदिया से। चुनरी सुनहरी गोटों की उसने उसको उड़ाई, मेहंदी भी उसके हाथों पर खूब सजाई। मेहमान दूर दराज से सभी आए, दावतें शादी की सभी को लुभाए। दुल्हन भी बनी अस्मा मंद मंद मुस्काए, जाने कितने रंग बिरंगे सपने आंखों में सजाए। दुल्हन के रूप में अस्मा कयामत है ढाए, जो उसको देखे बस दीवाना हो जाए। दुल्हे मियां पर जो बिजली गिरेगी, ये सभी सहेलियां अब यही फुसफुसाए। माँ कहीं से दुआएं करती नजर आए, जितनी सुंदर है मेरी अस्मा, अल्लाह करे नसीब भी उसके इतने ही सुंदर बनाए। खुश रहे मेरी बच्ची, बुरी नजर से अल्लाह बचाए। ढोलकी शहनाई खूब बजवाई, 3 बार कबूल है की सदा आई, और अस्मा हो गई पराई। सब ने मिलकर फिर अस्मा की डोली उठाई। दुल्हन अस्मा एक रात में ना जाने कितने रिश्ते साथ ले आई। किसी की बहू, किसी की चाची, मामी, तो किसी की परजाई। नाजुक कंधों पर ढेरों जिम्मेदारियां लद कर आई। सबसे अस्मा का ताल्लुक था, सबसे गहरी सहेली थी रसोई। शादी की रात वादों कसमों की बरसात हुई। मियाँ ने खूब तारीफें लुटाई और अस्मा उसकी हुई। अस्मा तो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। शादी की रात ही मियाँ को मिजाजी खुदा बना चुकी थी। सुबह सवेरे सासू माँ ने आवाज लगाई, पर अस्मा की नींद कहाँ खुल पाई। मिजाजी खुदा के साथ रात में नींद कहाँ आई।
देर से उठने पर ससुरालियों ने पहले ही दिन दांतों तले उंगली दबाई। बिखरे बाल संवारे शर्माती हुई अस्मा कमरे से बाहर आई। सास ने हवास लिया और बेटे को भी आवाज लगाई। वो तो सो रहे हैं। आसमा ने खबर सबको सुनाई। भाभी का रंग तो खिल गया। छोटी नंद चिल्लाई। कुछ दिन इसी तरह निकल गए। फिर तो तेवर सभी के बदल गए। रोज इसी तरह देर से उठेगी तो रसोई का क्या काम कब खत्म करेगी। सासू माँ ने दहाड़ लगाई। अस्मा को सहम गई, कुछ ना कह पाई। मिजाजी खुदा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। अब बस अस्मा थी और उसकी तन्हाई। सासू माँ शायद अब अस्मा को पहले से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसे हर बात पर टोकती थी। अस्मा क्योंकि जवाब ना देती तो वो उसे घमंडी कह देती थी, और जो अगर अस्मा जवाब दे दे तो अस्मा की खलाकी के कसीदे वो पढ़ ले। अस्मा जाने किस कश्मकश में फंस गई। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। घबरा कर जब अस्मा ने मिजाजी खुदा को बताया तो सभी ने मिलकर अस्मा को फसादन का तमका पहनाया। अस्मा की बहुत इज्जत अफजाई हुई। साथ में अस्मा ने खानदान में भी शामत आई। अस्मा को सबसे अच्छे अस्मा को सबक अच्छे से सिखलाया गया। घर में कैद खाने की जेलर सासू माँ है, ये अच्छी तरह समझाया गया। अब अस्मा बहुत अच्छी कैदी बन गई थी। उसको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अब अस्मा पहले वाली अस्मा भी नहीं थी, वो बदल गई थी। काम करना और हर चीज जेलर के मुताबिक करना सीख गई थी। तो अब अस्मा सबकी चहेती भी हो गई थी। अब ससुरालियों में अस्मा की बहुत इज्जत थी। अस्मा ने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई के बीच पर एक पुल बना दिया था। अस्मा ने कभी घर वालों के मिजाज को समझ लिया था और अपना लिया था। अस्मा की मिजाजी खुदा भी उस पर मेहरबान थे। अस्मा के पास ऐशो आराम के हर सामान थे। अब यही कहते हैं कि अस्मा बहुत खुश है। बस जितनी जरूरत हो उतना ही बोलती है। काम भी सभी तरीके से करती है, बस अपने काम से काम रखती है। क्या अस्मा वाकई खुशहाल है? कैसा क्यों लगता फिर अस्मा को यह ससुराल है? अस्मा ने तो सबको खुश कर लिया, पर फिर अस्मा ने खुद को क्यों बदल लिया? बदली हुई अस्मा सबको पसंद है या पर कटी चिड़िया पिंजरे में बंद है? मिजाजी खुदा एक बेहतरीन मियाँ है या अस्मा ने खुद को मिजाजी खुदा के मिजाज में कैद कर लिया है? ससुराल अब अस्मा का घर है, तो फिर अस्मा को क्यों लगता ससुरालियों से डर है? काश की ससुराल कोई ऐसी जगह बन पाता जहाँ जीने के लिए अस्मा और अस्मा जैसे कईयों को खुद को मारना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। माय चाइल्ड इज डिस्टर्बिंग मी सो मच कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं। बहुत अच्छी अस्मा की कहानी आपने मतलब एक पूरा स्ट्रगल बताया है अस्मा के जरिए। तो अमरीन जी, आप एज ऑलवेज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। इस बार भी आपने हिंदी में इतनी खूबसूरत कविता लिखी है, बहुत अच्छा। नीलम मैम, आप कुछ बोलेंगे? और सर प्लीज। योर नेम। आपसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मुझको। अमरीन, बहुत साल हो गया मुझको लिखे। मैंने जो पोएम अपनी सुनाई थी बहुत साल पहले मैंने लिखी थी, 2006-7 में, जब मैं बीएड कर रहे थे, मैं और अमृत एक से। लेकिन इस बार जो है आप लोगों से मिलके लिटरली इंस्पायर हो गया हो कि अब और आगे लिखना चाहिए, इस जर्नी को खत्म नहीं करना चाहिए। तो मैम, ब्यूटीफुल पोएम, आसमा का पोएम। आपने ऐसा बोला है जैसे लगता है किसी के जीवन की आप पूरी कहानी सुना रहे हो, किसी के जीवन में हर दिन जो बीत रहा है उसको आपने शब्दों में पिरो दिया है। सुपर्ब मैम, बहुत 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 अच्छा। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं पढ़ती हूँ अटक अटक के, पर बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द हो रही है और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। यहाँ पे 3:30 हो चुके हैं। सब चीजें मेरे यहाँ पे भी लाइट्स ऑफ हो गई है और मैं मेरे 2 जजेस का इनका बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी। कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप दोनों कंटिन्यू बैठे हुए हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट आउट हो गए हैं, सब थके चूर हो गए हैं, लेकिन मैडम और सर, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली। थैंक यू सो मच। कंटिन्यूशन में बैठे हुए हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इफ यू कैन हियर मी, थैंक्स टू यू मैम, थैंक्स टू यू सर। मतलब मैंने अभी तक जितने भी इवेंट